ہندوستان جو ہے وہ آپریشن سندور 2 کی باتیں تو کر رہا ہے, بڑھ کے تو مار رہا ہے, میرے خیال سے تو نہیں کرے گا کیونکہ ویسی اسکور جو ہے وہ 6-0 ہے اور اب بغل ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ 7-0 ہے. لگ یہ رہا ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے ہی کاروائیاں کرے گا. ہم نے اگر قلعہ بند ہو کے لڑے تو پھر یقین مانیے کہ پھر پاکستان بیٹل گراؤنڈ بنے گا اور یہ جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی طرح جو ہے وہ نکلتے چلے آئیں گے. طالبان کا ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے جو وہ بھارت کے یار ہو گئے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں؟ وہ تمام لوگ ہیں جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ایک منفی کردار ادا کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے متعدد لوگ جو ہیں جن کو بھارت کا پیسہ مل چکا ہے, وصول پایا ہوا ہے, اور وہ اب جو ہے وہ انہوں نے افغان حکومت کو یہ پیسہ نہیں دیا, یہ انہوں نے انڈیویجولز کو دیا. پاکستان کو اب یہ سمجھ آنا چاہیے کہ نہ مشرق نہ مغرب کوئی ہمارا دوست نہیں ہے. السلام علیکم. اینگل 360 کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں علی عابد. ناظرین, پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان میں دہشت گردی کی 2 بڑی وارداتیں ہو چکی ہیں. پہلی وانا کیڈٹ کالج میں ہوئی ہے اور دوسری ہوئی ہے اسلام آباد میں کچہری چوک پر. اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب تک جو ہے وہ 12 شہادتیں ہو چکی ہیں جن میں 3 سپاہی بھی شامل ہیں. خیر, یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کل شام اسی وقت یعنی کہ مغرب کے آس پاس جو ہے وہ بھارتی دارالحکومت دہلی میں ایک جو ہے وہ بلاسٹ ہوا تھا اور اس میں بھی متعدد اموات ہوئی تھیں. سب سے پہلے تو بھارتی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ یہ سلنڈر بلاسٹ ہے, یہ گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہو گیا اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ہمیشہ بھارت میں ہوتا آیا ہے کہ آنن فانن یہ سارا الزام, سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈال دیا گیا اور توپوں کا رخ مودی نے بھی اور اس کے گودی میڈیا نے بھی پاکستان کی جانب کر دیا. تو صورتحال یہ تھی کہ آج مسلسل بھارت چلا رہا تھا, وہی اپنا نیریٹو بیچ رہا تھا کہ پاکستان مخالف بات کی جا رہی تھی, پاکستان کو برد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا. اور اسی آڑ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ پیجز صبح جو ہے وہ افغانستان سے جو ہینڈل ہوتے ہیں, جو ہندوستان سے ہینڈل ہوتے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ بہت جلد جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا, بہت جلد جو ہے وہ پاکستان میں اس کا جواب دیا جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ پہلے وانا میں دہشت گردی ہوتی ہے اور پھر وہ اسلام آباد میں دہشت گردی ہو جاتی ہے. تو اب آنے والے دنوں میں ریاست پاکستان کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گی, کیونکہ اب یہ بات زبان زد عام ہو گئی ہے اور بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ ہو چکی ہے کہ افغان طالبان بھارت کی پراکسی بن چکے ہیں اور اب جو ہے وہ افغانستان سے بیٹھ کر بھارت جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے. پہلے ایران کو بھی ایز اے پلیٹ فارم یوز کیا جاتا تھا, لیکن حالیہ جو اسرائیل ایران تصادم ہوا اور اس کے بعد جیسے ہی راکٹ سارے ایجنٹس نکالے گئے ایران کی جانب سے, تو اب اس وقت جو مرکز بنا ہوا ہے بھارتی پراکسیز کا وہ ہے افغانستان. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا جو ٹویٹ سامنے آیا ہے اس میں تو انہوں نے بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے اور اب جو ہے وہ حتمی ڈیسیژن لینا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کیا ڈیسیژن لیتی ہے اور یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے مستقبل میں کیا ارادہ ہے بھارت کا. جس طریقے سے آپریشن سندور 2 کی باتیں آ رہی ہیں سامنے, کیا اسی طریقے سے کنونشنل وار ہوگی, وہی طیارے آئیں گے, طیاروں کے ذریعے ہوگی, یا میزائلز برسائے جائیں گے, یا پھر جو ہے اس طریقے سے لڑائی ہوگی یعنی کہ پراکسیز کے ذریعے لڑائی ہوگی. کیونکہ بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ بھارت چونکہ ہار چکا ہے, آپریشن سندور 1 ناکام ہو چکا ہے, تو سندور 2 کے ذریعے وہ پراکسیز کے ذریعے اب جو ہے وہ لڑائی لڑے گا. تو اسی پر بات کریں گے. تحریک نوجوانان کے چیئرمین ہیں, معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں عبداللہ حمید گل صاحب, ہمارے ساتھ اسلام آباد سے وائر زوم لنک موجود ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم حمید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ جی. اچھا سر, یہ بتائیے گا اگر پچھلے 24 گھنٹوں کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو دہلی میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ ایک طریقے سے کبھی سی این جی بلاسٹ کہا گیا, کبھی جو ہے وہ سلنڈر بلاسٹ کہا گیا, اور ود ان ہاف این آور جو ہے وہ جیسے کہ ہمیشہ ہندوستان میں ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام لے لیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے پاکستان کا نام آ جاتا ہے. خیر, وہ تو ہو گیا کل. پھر ہم نے دیکھا کہ لیٹ نائٹ وانا میں جو دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر آج ڈے ٹائم میں جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ بلاسٹ ہوتا ہے, اس میں کئی شہادتیں ہو جاتی ہیں. تو کیا سمجھا جائے کہ آپریشن سندور کی جو ناکامی ہوئی تھی, بیٹل گراؤنڈ میں بھارت کچھ کر نہیں سکا, تو اب جو ہے وہ فتنۃ الخوارج کے ذریعے, فتنۃ الہندوستان کے ذریعے اب یہ اس طریقے سے پاکستان کے خلاف بدلہ لیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے جنگ چھیڑی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ آپ کا.
देखें, सारी चीज़ें हम बिल्कुल यकीनन भारत है इसमें, लेकिन हम ये बातें बोल-बोल के तंग आ चुके हैं ना कि भारत मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है। हमने इसके हवाले से क्या किरदार अदा किए हैं? भारत तो मुलव्विस है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, चाहे वो बीएलए के हो साथ मजबूत करना हो उनके हाथ, या जो है वो मजीद ब्रिगेड को जो है वो मजबूत करना हो। देखना तो यह है कि इस भारत क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही दहशतगर्दी में मुलविस है, या दीगर ममालिक भी उसकी जो है वो दस्तरस से बाहर नहीं है। तो देखना यह है कि अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, कतर के अंदर, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान के अंदर, मालदीव के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर भारत की सरगर्मियां जो हैं वो जारी हैं। लेकिन सही। इन सब के बावजूद अमेरिका जो है उसके साथ दिफाई मुआहदा कर लेता है। पाकिस्तान को ज़बानी कलामी तारीफ के ऊपर रखा जाता है, और कोई पाकिस्तान को एक मीनिंगफुल जो सपोर्ट है वो नहीं दी जाती। एक ऐसी जो कि मानी खेर सपोर्ट जिसको आप कहें वो नहीं दी जाती। चाहे वो टेक्निकल सतह के ऊपर हो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल सतह पे हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की नज़र में हो, या वो सियासी सतह पे हो। सही। अब इन सब के बावजूद अगर जो है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं आ रही, तो फिर हमें ये समझना चाहिए है कि ये एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। एक मुआशी जानवर बन चुकी है दुनिया, जहाँ जो है इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बसती। चाहे वो आप गज़ा के अंदर मामलात देख लें, या कश्मीर के अंदर भारतीय दहशतगर्दी देख लें, या अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान में मासूम जानों का ज़िया देख लें। अब ये जो कल रात का वाक़या हुआ, पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने इसके ऊपर इज़हार ताज़ियत किया, और मैं भी समझता हूँ कि इंसानियत के लिए तो हम हमेशा जो है वो अच्छा जज़्बा एग्ज़ैक्टली रखते बिल्कुल। हैं। ये लेकिन उसकी पुलिस यहाँ ये कह रही है, उनके अपने सरकारी ज़राए कह रहे हैं कि ये एक गैस सिलेंडर धमाका था, जिसके नतीजे के अंदर एक अमवात हुई। लेकिन 12 घंटे के अंदर जिस तरीके से भारत ने तूफान खड़ा किया सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, उनका बाकायदा एक ही बयानिया था, जो चाहे वो ट्विटर अकाउंट थे या फेसबुक, चाहे वो जो है वो सोशल मीडिया था या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिल्कुल। उन्होंने एक ज़बान होके पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो था वो करना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जो सोशल मीडिया के ऊपर अफ़गानिस्तान की जानिब से जो हमने ट्वीट्स देखी, जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर उनके जो ग्राफ़िक वायलेशंस देखी पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया में कोई सोशल मीडिया उन ग्राफ़िक वायलेशन को इजाज़त नहीं देता। तो उन लोगों के अकाउंट्स क्यों नहीं बंद किए गए? बात तो एग्ज़ैक्टली। ये है। बड़ा क्योंकि क्वेश्चन है। तुलु न्यूज़ जो कि अफ़गानिस्तान की जो सबसे बड़ी तुलु न्यूज़ है, उसने आज से चंद रोज़ कबल ये कहा था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद को हम निशाना बनाएँगे। लेकिन सही। इससे पहले ज़रा माज़ी में चले जाएँ। आपने वाना का ज़िक्र किया, दिल अभी भी जो है वो परेशान है। लेकिन देखें, आर्मी पब्लिक स्कूल का एक सान्या होता है। उसके अंदर जो है वो बाकायदा पाकिस्तान की मीडिया को तकरीबन 1:30 बजे के लगभग जो है वो इल्म होता है कि ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हो रहा है। लेकिन बिल्कुल। विक्रांत सूद जो कि भारत के रॉ के साबिक सरबराह थे, वो ट्वीट करते हैं 10:30 बजे पाकिस्तान के कि मोर कैजुअल्टीज एंड मोर एक्सप्लोजन्स एक्सपेक्टेड एट आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। उनको कैसे अच्छा। पता चला? पाकिस्तान ने जो नरेंद्र मोदी एक एक्सेप्टेंस दी थी ढाका के अंदर खड़े होके कि हमने पाकिस्तान तोड़वाने में, और मैंने बता रहे खुद नरेंद्र मोदी एक आरएसएस का नुमाइंदा जो है पाकिस्तान में दायर किया, क्या हमें इंटरनेशनल मुकदमा उसके ऊपर कायम नहीं करना चाहिए दहशतगर्दी का? क्या ये सही। रियलिटी नहीं है कि $10 बिलियन का असला जो है अफ़गानिस्तान में अमेरिका दानिस्ता तौर पर छोड़ के गया, जो आज जो है वो भारत के जो खरीदे हुए दहशतगर्द हैं उनके हाथ। भारत ने जो बाकायदा डिस्ट्रॉयश के नाम से एक सेल कायम किया है, और उसका $1 बिलियन जो है वो बजट रखा गया है। दूसरी जानिब जो है भारत ने तकरीबन $10 बिलियन जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, और ये अफ़गान नेशनल आर्मी और जो नाम ज़माना उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जिसको आईएसएफ फोर्सेस और खुद भारतीयों ने जो है ट्रेन किया, वो आज जी। जो है के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अमलियात करने के अंदर उनको हायर किया जा रहा है, जिनको आपको सही। मालूम है पाकिस्तान ने हायर्ड गन्स का नाम भी दिया।
बिल्कुल। वो लोग हैं जो काबुल में बैठ के जो है वो ताने बाने बुनते हैं, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वहाँ एम्बेसी बनाई है, जिसको फौरन उन्होंने एम्बेसी का दर्जा दिया भारत ने, और 8 कॉन्सुल खाने बना डाले। ऐसा क्या इंटरेस्ट डेवलप हो गया? बात तो ये है। तो सर वे आउट क्या है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि अब मसला ये है कि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अब हिंदुस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें तो कर रहा है, भड़के तो मार रहा है, मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा, क्योंकि वैसे ही स्कोर जो है वो 6-0 है और अब बकौल डोनाल्ड ट्रंप के वो 7-0 है। लेकिन लग ये रहा है कि अब वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ही कार्रवाइयाँ करेगा। जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी हैं, अभी भी अफ़गान तालिबान सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोहा में भी मुज़ाकरात हुए, नाकाम हुए, तुर्किया में भी तकरीबन नाकाम हुए। कोशिश तो की जा रही है। यही रहेगा बैटल ग्राउंड, पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बनता रहेगा और अफ़गानिस्तान और भारत गठजोड़ जारी रहेगा। देखें, अगर तो हमने जो है वो ये ही जो मामलात चल रहे हैं और हमने अगर किला बंद होके लड़े, तो फिर यकीन मानिए कि फिर पाकिस्तान बैटल ग्राउंड बनेगा, और ये जो है वो याजूज-माजूज की तरह जो है वो निकलते चले आएँगे। अच्छा। इसलिए इनको जो है हमें अपनी सरहदों से बाहर जो है वो जंग को लेके जाना है। हमें सरहदों के अंदर नहीं लेके जाना, और यही मेरे वालिद सही। मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह की पॉलिसी थी। और ये बात जो है मुझे खुद इंडियन डिफेंस जो अटैची थे, जनरल संजय सिंह, जो कि अब जनरल बन गए हैं। आपने देखा होगा जनरल द्विवेदी के साथ एक सिख जरनैल खड़ा है। जब वो धमकियाँ दे रहा है पाकिस्तान को, तो वो सिख जरनैल का नाम जो है जनरल संजय सिंह है। मेरा ख़्याल है अमेरिका को अपनी पॉलिसी पे नज़र-षानी करनी चाहिए, और जी। पाकिस्तान को जो है मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द जो है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 24 ठीक है। दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इस टाइम पे अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अफ़गान तालिबान रेजिम वो पनप रही हैं। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, एक कॉमन मैन ये बात नहीं समझ पा रहा कि ये वही अफ़गान तालिबान हैं, जो पाकिस्तान के बड़े शुक्रगुज़ार भी हुआ करते थे। दोहा मुज़ाकरात पाकिस्तान ने अरेंज करवाया, फिर अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया। दोबारा अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई वहाँ पे। माज़ी में भी जो चंद रियासतें थीं जिन्होंने उनको कबूल किया हुआ था, 2001 से पहले पाकिस्तान उनमें शामिल था। अब तालिबान का ऐसा क्या मसला हुआ है जो वो भारत के यार हो गए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दुश्मनी पर उतर आए हैं? कुछ इतलात ऐसी भी आती हैं कि उनकी कंधारी शूरा अलग सोचती है, काबुल वाले अलग सोचते हैं, जो उनकी हक्कानी नेटवर्क है वो अलग सोचता है, मुल्ला उमर के जो बेटे हैं वो अलग सोच रहे हैं। तो क्या उनके अंदर ही एका नहीं है, अलग-अलग वॉरलॉर्ड्स बन गए हैं, डिविजन्स हो गई हैं, कोई किसी एजेंसी के पेरोल पे चल रहा है, कोई किसी से पैसे पकड़ के काम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के, एहसानात इतने हैं कि मेरे ख़्याल है कि गिनवाते-गिनवाते एक दिन गुज़र जाए। मुझे तो एक-एक चीज़ जो है ज़बानी, आई एम अ विटनेस टू हिस्ट्री, इसलिए मैं तो इस बात पे नहीं आता। लेकिन जहाँ तक दोहा मुज़ाकरात की बात है, उसके अंदर पाकिस्तान का बुनियादी किरदार नहीं था। अगर होता तो फिर आप ये बताइए कि ये मुज़ाकरात जो है पाकिस्तान में तय पाते, या फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जो थे वो उन मुज़ाकरात का हिस्सा बने, जबकि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान की अदम मौजूदगी के अंदर दोहा एकॉर्ड हुआ था, और आज तक अमेरिका और अफ़गान तालिबान दोनों ने इस मुआहदे की शिकों को जो है वो छुपाया हुआ है। अब उसकी ठीक है। क्या वजूहात हैं, ये तो वही बता सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में इन शिकों को मंज़र आम पर आना जो है वक़्त का तक़ाज़ा है। लेकिन दूसरी जानिब जो है, आपने जिन ग्रुप्स का ज़िक्र किया, अफ़गानिस्तान में इस टाइम पे 4 बुनियादी डोमिनेटिंग ग्रुप हैं। एक का जो नाम है वो है कंधारी ग्रुप, और एक का जो कंधारी ग्रुप है उसके अंदर मुल्ला याकूब और ये सारे जो कि आप कह सकते हैं, और इनकी जो सोच है वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही मनफी है। दूसरी जानिब जो है वो हेराती ग्रुप है। हेरात जो है वो आपके इल्म में है कि उनका ईरान के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अब जो हेरात ग्रुप है उसके अंदर जो है वो एक, मतलब वो प्रो आप समझ लें ईरान है। और अभी हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है वो वहाँ ईरान तशरीफ़ ले गए थे, और उन्होंने सही। का जो ईरान ने एक रोल प्ले किया, और उन्होंने जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर दिया उस ग्रुप को। तीसरा ग्रुप जो है वो पख्तिका का ग्रुप है, या पख्तिया जिसको आप कहें, लोहिया पख्तिया, जो होस्ट ग्रुप को आप कह सकते हैं, कानी ग्रुप कहते हैं। वो उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मुल्ला रसूल जो अभी बात करने के लिए, मुल्ला नजीब सॉरी, जो आया था बात करने के लिए, वो जब
बात उन्होंने तो काफी हद तक इसको मंतकी नताइज पे पहुंचा दिया था, लेकिन सही। इन्होंने जब काबुल से राब्ता किया, जो चौथा ग्रुप है वो काबुल ग्रुप है, जिसके अंदर कजलबाश भी मौजूद हैं, एमक भी मौजूद हैं, जिसके अंदर आप जो है वो नॉर्दर्न अलायंस की बात कर रहे हैं वो भी हैं, और भी इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने एक मनफी किरदार अदा किया, और ये वो लोग हैं जिनमें से मुतअद्दिद लोग जो हैं जिनको भारत का पैसा मिल चुका है, वसूल पाया हुआ है, और वो अब जो है वो उन्होंने अफगान हुकूमत को ये पैसा नहीं दिया, ये उन्होंने इंडिविजुअल्स को दिया जो वहाँ के लोकल लोगों को हायर करते हैं। और ये अभी जो हालात हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन, ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र किया आपने, ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है, और वो अच्छा। अफगानिस्तान के जरिए उन्होंने हमला करके लॉन्च कर दिया है। अभी तो ऑपरेशन त्रिशूल की पारी है, जिसको वो जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। और ऑपरेशन त्रिशूल का मतलब ये है कि वो ऑपरेशन त्रिशूल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, क्योंकि त्रिशूल के 3 जो भाले होते हैं, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके ऊपर वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन भारत ये कहता है, क्योंकि रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक उनको पिछली जंग के अंदर $84 बिलियन का नुकसान हुआ। वो ये कहते हैं कि अगर हम 10-12 बिलियन लगा लें और पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया जाए, तो ये इसमें उनको कोई, मेरे ख्याल में जो है वो आर नहीं है। लेकिन सही। इन सब के बावजूद भारत के खिलाफ एक आलमी केस मौजूद है, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म का, जिसके अंदर कतर, अमेरिका, पाकिस्तान और ये दीगर ममालिक जो हैं वो शामिल हैं, और भारत जो है वो प्रमोट कर रहा है टेररिज्म को। अब आप देख लीजिए सही। कि जितने लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पे टेररिस्ट के सपोर्टर्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो अकाउंट जो पाकिस्तान के हवाले से ग्राफिक वायलेशन कर रहे थे, इस्लामाबाद की इमारतों को जलते हुए दिखा रहे थे, कल किसे लगे में हो, तो उन लोगों के खिलाफ क्या उनके अकाउंट्स बंद हो गए? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन हुआ? अगर नहीं हुआ, तो ये तमाम लोग जो हैं, आपको पता है ये तमाम जो सोशल मीडिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, या तो ये भारत नवाज़ हैं या ये मगरिब नवाज़ हैं। तो इनको क्यों नहीं, जैसे आप देखिए आदिल राजा वगैरह के अकाउंट्स क्यों नहीं बंद होते? हालाँकि वो झूठी वायलेशंस करते हैं, वो तमाम बिल्कुल। सोशल मीडिया की वायलेशन करते हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स बंद नहीं किए जाते। हमें ये फैसला करना है मिन हैसुल कौम, और मैं अपने लोगों से भी ये पूछूँगा। आज देखें ना, वाना का ज़िक्र किया आपने। वाना के अंदर कहाँ के बच्चे हैं? वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, पाकिस्तान बिल्कुल। के बच्चे हैं, और ये वहाँ के कबायली अमायदीन की ख्वाहिश के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है एक कैडेट कॉलेज का कयाम जो है वो किया गया था। और ये सही। बच्चों को निशाना बनाना, आज सुहेल खान आफरीदी कहाँ मौजूद हैं? आज वो वहाँ वाना के अंदर क्यों नहीं गए? आज उनकी ज़ुबान जो है वो क्यों जो है वो पथरा गई है? आज उनकी वहाँ मौजूदगी क्यों नहीं है? कल वो जो वहाँ एक जिरगा करने जा रहे हैं, उनसे कोई ये सवाल पूछे कि क्या पाकिस्तान के हक के अंदर भी कोई जिरगा अफगानिस्तान में होता है? क्या अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हिमायत के अंदर कोई आवाज उठती है? ये आप ही को सिर्फ जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हमारा सब कुछ, इसका जीना मरना इस पाकिस्तान के साथ है। आज वाना के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये अफ़वाज पाकिस्तान है, यही खड़ी है वहाँ, यही मैदान में, बावजूद ये गालियाँ सुनते हैं, इनके ऊपर जो है तबर्रा भेजा जाता है, इनको जो है बिल्कुल। झूठा टारगेट किया जाता है, इनके ऊपर जो है मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। आज अपने बच्चों को बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से कोई नहीं निकला। आज अगर निकला है तो ये अफ़वाज पाकिस्तान निकली है। इसके लोगों ने अपनी कुर्बानी देने के लिए जो है वो कभी ना माज़ी में उन्होंने गुरेज़ किया, ना आइंदा वो गुरेज़ करेंगे। पाकिस्तान को अब ये समझ आना चाहिए कि ना मशरिक ना मगरिब कोई हमारा दोस्त सही। नहीं है। पाकिस्तान को ये लड़ाई खुद लड़नी है, लेकिन हम ये लड़ाई जीतेंगे इंशाल्लाह, और मेरा ये इंशाल्लाह। ईमान है कि जीतेंगे। लेकिन इसके लिए हमारी कौम को एक होके सोचना पड़ेगा। हम जो है सिर्फ फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ सकते। और दूसरा मेरा मुतालबा यह है, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना करने वालों ने, जिन्होंने पिछली 1 दिहाई से ज्यादा नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके ऊपर अमल नहीं किया, और उसकी वजह से हमारे हजारों लोगों की जानें जो हैं वो उनकी ज़ाया हुई, शहीद हुए। हुँ। इसका ज़िम्मेदार कौन है? वफ़ाक और सूबे में जो-जो लोग शामिल थे, जिन्होंने रसना डाला, लैतुल-लाल से काम लिया, उनके खिलाफ मेरे ख़्याल में कौमी मुजरिमाना गफ़लत के ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। मैं इसके लिए जो है वो अपील करूँगा
کہ ہمیں یہ کام کرا. اور دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان کے اندر جو ایک ایسے وقت کو چنا گیا جب اسپیکرز کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ نے اسلام آباد میں جی دھماکہ کیا ہے. آپ جان بوجھ کے یہ چاہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے, اس لیے جو ہندوستان کی عزائم ہے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں کسی سے. لیکن کیا ہندوستان کی سرزنش کی ہے, پانی کے معاملے کے اوپر کوئی سرزنش کی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اس کو آبی جارحیت قرار دیا ہے, اور یہ آبی جارحیت تو وہ کر رہا ہے, کبھی پانی چھوڑ کے کبھی پانی روک کے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس ٹائم پہ جو اندرون خانہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں, اور پھر بلوچستان کے اندر بھی مجھے گلا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کہاں کھڑی ہے. کیا ریڈ زون سے باہر نکلتی ہے وہ حکومت؟ کیا وہ اب دیکھیں کہ یہ کافی عرصے کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے اب اسلام آباد کے اندر دہشت جی گردی کا, بالکل. اور اسی طریقے سے سندھ اور پنجاب میں جو ہے بہت کمی آ گئی تھی. اس کا مطلب ان کے سلیپ ایکٹیو ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ایک اہم دارالخلافے کو جو ہے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں اس کے لیے جو ہے سیاسی معاملہ پہ بھی جو ہے وہ کام اپنے یگانگت رکھنا ہوگی, اور دوسرا جو ہے ہمیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کرنا ہوگا جو کہ انتہائی اہم ہے, اور وہ ہے آپ کا پاکستان کے حوالے سے ایک موقف اختیار کرنا. اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو یقین مانے دشمن ایک ایک کر کے ہمیں توڑ کے رکھ دے گا. چلیں, بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کے متعلق آپ نے اگر رائے دینی ہے تو لازمی کامنٹ سیکشن میں جا کے دیجیے گا, اور اگر ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. فیس بک, انسٹا اور ٹک ٹاک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیجز کو لازمی لائک کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.